السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرب امارات کی تازہ ترین اپڈیٹ کے ساتھ میں عبدالستار خان لغاری آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج کی سب سے اہم خبریں میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ شارجہ کی معروف مارکیٹ کے دکانداروں کو انتہائی اچھی خبر سنا دی گئی، اور متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے طبی قانون میں ترمیم، اور دبئی ایئرپورٹ پر پھنسے پاکستانی مسافروں کی آخرکار سنی گئی، اور خلیجی ممالک میں کرونا وائرس بے قابو ہو گیا۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں سینکڑوں نئے کیسز رپورٹ۔ دبئی میں رہائش پذیر بھارتی شہری کو ایئرپورٹ پر سوتا چھوڑ کر جہاز بھارت روانہ ہو گیا۔ اور آخری خبر فرینڈز، سب سے اہم خبر، وزیر اعظم عمران خان کا میسور پاکستانیوں کو وطن واپس لانے پر امارات ایئر لائن کا شکریہ کا ٹویٹ۔ فرینڈز، اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگر آپ نے آلریڈی سبسکرائب کر لیا ہے تو بیل کے آئیکن پہ بھی کلک کر لیا ہے، تو اس کے لیے میں آپ کا مشکور و ممنون ہوں۔ فرینڈز، کل میں نے اپڈیٹ بلیٹن امارات بلیٹن شیئر کیا تھا۔ کچھ دوستوں کے پازیٹیو، کچھ دوستوں کے نیگیٹو کمنٹ آئے، تمام کی میں دل و جان سے عزت کرتا ہوں۔ آپ کو اللہ پاک تمام دوستوں کو سلامت رکھے۔ چلتے ہیں آج کی پہلی اپڈیٹ کی طرف۔ شارجہ کی معروف مارکیٹس کے دکانداروں کو انتہائی اچھی خبر سنا دی گئی۔ شارجہ ایزیسٹ مینجمنٹ نے اپنے زیر انتظام ہراج اور جبیل مارکیٹس کے کرایہ داروں کو 3 ماہ کا کرایہ معاف کر دیا۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کی وجہ سے کاروبار برے حالات کا شکار ہیں، جس کے باعث متوسط طبقہ اور کارکنان بہت بڑی پریشانی کا شکار ہیں، جن میں پاکستانیوں کی بھی بڑی گنتی شامل ہے۔ ایسے وقت میں حکومت اور نجی شعبے کی جانب سے کئی اہم رعایتوں کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ اماراتی حکومت کے زیر انتظام ادارے شارجہ ایزیسٹ مینجمنٹ کی جانب سے بڑا اعلان کیا گیا، جس کے مطابق ہزاروں دکانداروں کو کرایہ کی مد میں شاندار رعایت دی گئی۔ ادارے کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ ہراج اور جبیل مارکیٹس کے دکانداروں کو اگلے 3 ماہ کا کرایہ معاف کیا جا رہا ہے، تاکہ خراب معاشی صورتحال کے باعث وہ مزید پریشانی سے بچ سکیں۔ اس سے قبل الفتیم گروپ کی جانب سے بھی اپنے شاپنگ مال میں موجود تمام دکانداروں کو خوشخبری سنائی گئی تھی کہ جب تک کرونا وائرس کی وبا کا خاتمہ نہیں ہو جاتا، دکانداروں سے کرایہ وصول نہیں کیا جائے گا۔ واضح رہے، چند روز قبل دبئی کے معروف تعمیراتی گروپ میراث اور عالمی سرمایہ کار کمپنی دبئی ہولڈنگ کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا کہ وہ اپنے ریٹیل اور مقامی کلائنٹس کو ایک خصوصی پیکیج کے ذریعے 1 ارب درہم کی مالی مدد فراہم کریں گے۔ یہ ریلیف پیکیج دبئی ہولڈنگ اور میراث ایکو سسٹم کے ساتھ منسلک کمپنیوں اور افراد کی مدد کے لیے دیا جا رہا ہے، تاکہ کرونا وائرس کے باعث خراب معاشی صورتحال کا نشانہ بننے والوں کی مدد ہو سکے۔ دبئی ہولڈنگ اور میراث کے چیئرمین شیخ احمد بن سعید المکتوم نے اس حوالے سے بتایا کہ ہم نے دبئی ہولڈنگ اور میراث کی انتظامیہ کو ہدایت کر دی ہے وہ ہمارے ساتھ ان کمپنیوں اور افراد کی مالی معاونت کریں جو کرونا وائرس کے باعث معاشی طور پر برے وقت سے گزر رہے ہیں، کیونکہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ وبا کے باعث پیش آنے والی مشکل صورتحال میں اپنے ان شراکت داروں کے ساتھ کھڑے ہونا ہماری معاشی اور سماجی ذمہ داری ہے۔ اس مقصد کے لیے دبئی ہولڈنگ اور میراث دونوں کمپنیوں میں الگ الگ ٹاسک فورس بنا دی گئی ہیں، جو ہر کیس کو سامنے رکھ کر اس سے متعلق منصوبہ تیار کریں گی، جس کے بعد متعلقہ کمپنیوں اور افراد کو مناسب مالی امداد اور معاونت فراہم کی جائے گی۔
दुबई होल्डिंग के जेर इंतज़ाम तिजारती इदारों में जुमेरा ग्रुप, दुबई प्रॉपर्टीज, टेकाकाम ग्रुप, दुबई ईस्ट मैनेजमेंट, दुबई एंड अरब मीडिया ग्रुप शामिल हैं, जबकि बीरास, रिटेल, रियल एस्टेट, सियाहत, होटलिंग, एफ एंड बी, रिटेल, इंटरटेनमेंट, टेक्नोलॉजी, बहरी और हेल्थ केयर के सेक्टर में दर्जनों कंपनियों का मालिक ग्रुप है। मीरास ग्रुप 8 मुरब्बा फुट की डेवलप्ड ज़मीन, 5,000 से ज़ायद घरों, 1400 रिटेल यूनिट्स और 15 अहम तरीन तफरीही मकाम का मालिक है, जिनमें बॉक्स पार्क, अल सैफ, ब्लू वाटर, सिटी वॉक, दुबई हार्बर, जुमेरा बे, काइट बीच, ला मीर, लास्ट एग्जिट, पर्ल जुमेरा, द बीच और आउटलेट विलेज शामिल हैं। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना वायरस से निपटने के लिए तिब्बी कानून में तरमीम। कोरोना वायरस में मुब्तला शख्स इतला न देने की सूरत में जेल जाएगा, जुर्माना भी होगा। अबू ज़ैबी मुत्तहिदा अरब अमारात ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए पुराने कानून में तरमीम करके इसमें कोरोना को भी शामिल कर लिया है। इस कानून के तहत अगर कोरोना वायरस में मुब्तला शख्स अपनी बीमारी छुपाए तो इसे कैद की सज़ा दी जाएगी और जुर्माना भी आयद होगा। वज़ारत इंसाफ की जानिब से तस्दीक की गई है कि मुतअद्दी अमराज से मुतालिक वफाकी कानून के 2014 के कानून नंबर 14 में कोरोना की बीमारी को भी शामिल कर लिया गया है, जिसका मकसद अवाम की सेहत का तहफ़्फ़ुज़ और कोरोना से निपटने की खातिर हुकूमत की कोशिशों को मुस्तहकम बनाना है। वज़ारत इंसाफ की जानिब से वाज़ेह किया गया है कि मज़कूरा कानून के तहत कोरोना की बीमारी छुपाने वाले या इसके दानिस्ता फैलाव का सबब बनने वाले अफराद को कैद या 10,000 दरहम जुर्माने का सामना करना होगा। बाद सूरतों में ये दोनों सज़ाएं इकट्ठी भी दी जा सकती हैं। अगर कोई डॉक्टर, फार्मासिस्ट, फार्मेसी टेक्नीशियन और मेडिकल प्रैक्टिशनर भी कोरोना समेत दीगर वबाई अमराज के शिकार अफराद के बारे में मुतल्लिका हुक्काम को आगाह नहीं करता या उसकी इन अमराज से मुतअल्लिक हक़ाइक़ सामने नहीं लाता, तो ऐसे पेशा वर अफराद को भी सज़ा भुगतना होगी। इस कानून का इतलाक़ किसी मुतासरा शख्स के साथी कारकुनों, बहरी जहाज़, हवाई जहाज़ और किसी दीगर ट्रांसपोर्ट के इंचार्ज पर भी होगा। अगर ये लोग अपने ज़ेर इंतज़ाम किसी भी ट्रांसपोर्ट में सफ़र करने वाले कोरोना के किसी मुश्तबा मरीज़ के बारे में जानते हैं तो इन्हें भी मुतअल्लिका हुक्काम को आगाह करना होगा। खिलाफ वर्जी करने की सूरत में जेल जाना होगा या फिर कम अज़ कम 10,000 दरहम और ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 दरहम का जुर्माना होगा, या दोनों सज़ाएं इकट्ठी भी दी जा सकती हैं। इस तरह जो लोग कोरोना वायरस में मुब्तला होने के बावजूद किसी हस्पताल या सेहत मरकज़ का रुख नहीं करेंगे, इन्हें भी सज़ा होगी। जो फ़र्द अपने कोरोना में मुब्तला होने की मर्ज़ के बारे में जानने के बावजूद लोगों से मेल जोल जारी रखेगा, इसे कम अज़ कम 5 साल कैद और कम अज़ कम 50,000 दरहम जुर्माना किया जाएगा। अब चलते हैं फ्रेंड हम अपने अगली अपडेट की तरफ। दुबई एयरपोर्ट पर फंसे पाकिस्तानी मुसाफिरों की आखिरकार सुनी गई। फ्लाई दुबई की खसूसी परवाज 101 पाकिस्तानियों लेकर पाकिस्तान रवाना हो गई। मुत्तहिदा अरब अमारात और पाकिस्तान दोनों मालिक की जानिब से कोरोना वायरस पर काबू पाने की खातिर परवाजें बंद कर दी गई हैं। परवाज़ों की इन बंदिश के नतीजे में सैकड़ों पाकिस्तानी भी मुत्तहिदा अरब अमारात में महसूर होकर रह गए थे।
इन पाकिस्तानियों की जानब से हुकूमत पाकिस्तान से अपील की गई थी कि इन्हें खसूसी परवाज़ के ज़रिए वतन वापस लाया जाए। आखिरकार दुबई में पाकिस्तानी कौंसल खाने की जानब से भी इन मुसीबत में फंसे पाकिस्तानियों के लिए की जाने वाली कोशिशें रंग ले आईं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दुबई एयरपोर्ट से फ्लाई दुबई एयरलाइन की खसूसी परवाज़ 101 मुसाफिरों को लेकर पाकिस्तान रवाना हो गई है। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तानी कौंसल जनरल और कौंसलेट के अफसरान पिछले 24 घंटों से कोशिश कर रहे थे कि मुसाफिर किसी तरह पाकिस्तान पहुंच जाएं, जिनकी कोशिशों के नतीजे में इमाराती हुकाम से खसूसी इजाज़त ली गई। कौंसल खाने की जानिब से बताया गया कि इस फ्लाइट के ज़रिए इन 5 मुसाफिरों को भी वापस भिजवाया गया है जो अबू ज़ेबी एयरपोर्ट पर फंसे हुए थे, जबकि 26 ऐसे मुसाफिर भी शामिल हैं जो एमरजेंसी में मुल्क वापस जाना चाहते थे। पाकिस्तानी कौंसलर जनरल अहमद अमजद अली ने बताया कि पाकिस्तानी मुसाफिरों को एयरपोर्ट पर खाना पीना और होटल में रिहाइश फराहम की गई। इस परवाज़ की रवानगी के बाद अमारात में अब किसी भी एयरपोर्ट पर कोई पाकिस्तानी वापसी का मुंतज़र नहीं है। अहमद अमजद अली ने इस मौका पर कहा कि पाकिस्तानी मुसाफिरों की वापसी के लिए इंतज़ामात करने पर इमाराती एयरलाइन का शुक्रिया अदा करते हैं। चलते हैं अगली अपडेट की तरफ। खलीजी ममालिक में कोरोना वायरस से बेकाबू, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात में सैकड़ों केसेस रिपोर्ट। मंगल के रोज सऊदीया में एक शख्स की हलाकत समेत वायरस से मुतासरा 205 नए केसेस, जबकि इमारात में 50 नए केसेस सामने आ गए। रियाज, खलीजी ममालिक में कोरोना वायरस बेकाबू हो गया। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अमारात में सैकड़ों नए केसेस। मंगल के रोज सऊदी अरब में एक शख्स की हलाकत समेत वायरस से मुतासरा 205 केसेस, जबकि इमारात में 50 नए केसेस सामने आए। तफसीलात के मुताबिक खलीजी इस्लामी ममालिक सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना के मजीद कई केसेस सामने आ गए। खासकर सऊदी अरब में एक ही दिन में कोरोना के नए केसेस में होशरबा इजाफा है। मुमलिकत में एक दिन के दौरान 205 नए केसेस सामने आए। यूं सऊदी अरब में अब तक 767 अफराद वायरस का शिकार हो चुके हैं, जबकि सऊदी अरब में कोरोना वायरस से मुतासरा एक मरीज जाँ बहक भी हो गया है। दूसरी जानब मुत्तहिदा अरब अमारात में भी एक ही दिन में कोरोना वायरस के 50 नए केसेस रिपोर्ट हुए। यूं इमारात में कोरोना वायरस से मुतासर कुल अफराद की तादाद 248 हो गई, जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना के बाद 2 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। दोनों ममालिक में कोरोना वायरस से मुतासरा कुछ मरीज सेहतियाब भी हो चुके हैं। मंगल के रोज सऊदी वजारत सेहत के तर्जमान मोहम्मद अब्दुल्ला अली ने मंगल को मदीना में हलाकत की तस्दीक करते हुए कहा, मदीना के हेल्थ एमरजेंसी रूम में गैर मुल्की मरीज की हालत तेज़ी से ख़राब होती जा रही थी और वो पीर की रात इंतकाल कर गए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मंगल को एक दिन में 205 अफराद में वायरस की तशखीस हुई, जिससे मुल्क में वायरस का शिकार अफराद की कुल मजमूई तादाद 767 हो चुकी है। इस सूरत हाल में सऊदी अरब में कर्फ्यू नाफिज किया जा चुका है, जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात में भी जुज़वी लॉकडाउन की सूरत हाल है। नेक्स्ट अपडेट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट अपडेट में दुबई में रिहाइश पजीर भारतीय शहरी को एयरपोर्ट पर सोता छोड़कर जहाज भारत रवाना हो गया। वीज़ा सर्विस मुअत्तल होने के बायस भारतीय शहरी एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकल सका। इंतजामिया का मुसाफिर को एयरपोर्ट पर ही कंटीना का फैसला। दुबई में रिहाइश पजीर भारतीय शहरी को एयरपोर्ट पर सोता छोड़कर जहाज भारत रवाना हो गया, जिसके बाद भारतीय शहरी एयरपोर्ट पर फंस गया। तफसीलात के मुताबिक दुबई के बैंक में काम करने वाला एक भारतीय शहरी भारत वापस जाने के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद था।
इसकी आंख लग गई और इसका जहाज रवाना हो गया। और अब मुत्तहिदा अमारात में वीज़ा सर्विस मुअत्तल होने के बाद भारतीय शहरी एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकल सका। और दूसरी जानब भारत में मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान होने के बायस वो भारत भी नहीं जा सकता। इसलिए एयरपोर्ट इंतजामिया का मुसाफिर को हवाई अड्डे पर ही करंतना करने का फैसला कर लिया गया है। एयरपोर्ट इंतजामिया के मुताबिक हवाई अड्डे रात से पहले भी 6 ऐसे लोग मौजूद हैं और इनके साथ भी ऐसा ही मसला हुआ है, इसलिए इन्हें भी दुबई एयरपोर्ट पर करंतना किया जा रहा है। ख्याल रहे कि दुबई में भारतीय पासपोर्ट सर्विस मुअत्तल कर दी गई है। भारतीय कौंसलर जनरल के मुताबिक भारतीय पासपोर्ट सर्विस 7 अप्रैल तक मुअत्तल कर दी गई है, ताहम किसी इमरजेंसी की सूरत में 24 घंटे कबल रब्ता करने पर इक़दाम किए जा सकते हैं। ज़राए के मुताबिक पासपोर्ट सर्विस कोरोना वायरस फैलने के खदशात के पेश नज़र मुअत्तल की गई है। दूसरी जानब कश्मीर पर ज़ालिमाना कर्फ्यू नाफिज करने वाला भारत खुद कई हफ्तों के लिए लॉकडाउन हो गया। कोरोना वायरस के 519 केस सामने आने और मुतअद्दिद हलाकतों के बाद भारतीय वज़ीर आज़म ने हंगामी तौर पर पूरे मुल्क को 3 हफ्तों के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। दूसरी जानब भारतीय इलेक्शन कमीशन ने पार्लियामेंट के ईवान बाला राज्य सभा के 2 साला इंतखाबात को मुल्क में कोरोना वायरस के फैलाव के पेश नज़र मुलतवी कर दिया है। अब चलते हैं फ्रेंड हम अपनी आखिरी अपडेट की तरफ। वज़ीर आज़म इमरान खान का मैसूर पाकिस्तानी को वतन वापस लाने पर इमारात एयरलाइन का शुक्रिया का ट्वीट। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुत्तहिदा अरब अमारात में फंसे मैसूर पाकिस्तानी को वापस लाने में इमारात एयरलाइन इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने फ्लाई दुबई के साथ मिलकर इस हवाले से सहूलियात फराहम की। मंगल को समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा, हम इमारात एयरलाइन में अपने दोस्तों के मशकूर हैं, जिन्होंने फ्लाई दुबई के साथ मिलकर इमारात में मैसूर पाकिस्तानी की वतन वापसी में सहूलत फराहम की। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात दोस्ती के मुश्तरका तारीख रखते हैं। फ्रेंड्स, ये तो थी हमारी आज की हेडलाइन। नेक्स्ट हेडलाइन में नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मुझे मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको पसंद नहीं आई तो आपके वीडियो के नीचे एक डिसलाइक का भी ऑप्शन मौजूद है, आप इसे डिसलाइक कर सकते हैं। आपके ताउन का बेहद शुक्रिया। थैंक यू।